the second lecture of History, India's Internal Challenges. We are studying about 9th standard. This is 9th standard lecture, third chapter, India's Internal Challenges. Lecture number 2, Issues Concerning to Northeast India. And we have 3 states to cover, Mizoram, Assam and Arunachal Pradesh. ये तीनों स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, क्या उनके इश्यूज थे, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो वेल, आई एम वेलकमिंग यू टू वन मोर लेक्चर फ्रॉम द ट्यूटर्स. दिस इज पार्थ सर. लेट्स गो. Issues concerning to Northeast India. Northeast India consists of the 8 states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. International borders of India touch each of these states to varying extents. ओके, ये आठों के आठों स्टेट्स जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स बहुत सारे कंट्रीज और बहुत सारे दूसरे वाटर बॉडीज के साथ शेयर करते हैं. These states are different with respect to ethnicity, language and cultural diversity. The first Prime Minister of independent India took the lead in bringing the tribes living in these areas into the mainstream of the country. The first Prime Minister of India, independent India. The first Prime Minister of independent India was Pandit Jawaharlal Nehru. Okay, उन्होंने यहाँ के रहने वाले जो लोग थे, ट्राइबल पीपल थे, उनको इंडियन होने का दर्जा दिया. सबसे पहले उनको अगर किसी ने इंडियन होने का दर्जा दिया था तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. In the year 1954, he formed the Northeast Frontier Agency, that is NEFA, area comprising of the territories of Sino-Indian borders and the tribal areas towards the north of the Assam. Sino-Indian borders मतलब हम लोग जो मतलब जिनके साथ हम लोग चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाले जो स्टेट्स है वो, और नॉर्दर्न आसाम के जो पार्ट्स थे उसको नेफा, वो एरिया को नेफा एरिया बोला गया. नेफा एजेंसी में आता था वो. ठीक है. नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू took the position of bringing about the development of hundreds of tribes in these parts while preserving their culture. उन्होंने उधर के रहने वाले ट्राइबल लोगों को इनवाइट किया और उधर के रहने वाले लोगों का वेलफेयर और उनको डेवलप करने की कोशिश की. वहाँ के रहने वाले लोगों को डेवलप करने की कोशिश की, प्लस उनको डेवलप तो किया बट उनके जो कल्चरल हेरिटेज था, उनका जो पुरानी उनके रीति रिवाज, उनकी जो बोलते हैं ना संस्कृति थी, उसको उन्होंने ख़राब होने नहीं दिया. उन्होंने उसको प्रिजर्व करके रखा. जैसे कि अभी मुंबई, पहले अगर गांव होगा तो अभी शहर हो गया, तो गांव वाला जो फील है वो चला गया, बट उनको उन्होंने वैसा फील होने नहीं दिया. दे वांटेड टू प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज, सो पंडित जवाहरलाल नेहरू हेल्प्ड देम टू प्रिजर्व the cultural heritage. Special provisions have been made with respect to these areas in the 6th schedule of the Indian Constitution. Constitution के 6th schedule में 6th particular part में ये उनके लिए थोड़ा सा special resolutions maintain किया गया है कि हाँ, उनको हम लोग ज़्यादा preferences देंगे in certain things. ठीक है. In 1965, the responsibility of administering this area was given to the Ministry of External Affairs. The Northeast Council Act of 1971 was supposed to advise the central government regarding aspects of common interest in economic and social spheres, interstate transport, electricity, flood control, etc. 1971 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट पास किया गया और उस एक्ट के थ्रू वहाँ के जो स्टेट्स थे उनको इंडिया के बाकी स्टेट्स की तरह फैसिलिटीज़ मिलना चालू हो गई, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक वेलफेयर. हर एक चीज़, वहाँ के जो लोग थे उनको हर एक चीज़ की फैसिलिटी मिलना चालू हो गई वो एक्ट के थ्रू. और ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, और इसको पास करने के बाद वहाँ के जो स्टेट्स थे उनका डेवलपमेंट रैपिड हो गया. सो कमिंग टू द फर्स्ट स्टेट, दैट इज मिजोरम. ओके, आई होप यू पीपल कैन सी फ्रॉम माई शैडो विजिबिलिटी क्या लिखा है. अगर नहीं है, समझ में आ रहा है, देन लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. Mizoram. The tribes in northeast India have an ancient history. When India became independent, the government gave administrative autonomy to the districts of Mizo majority areas of the Lushai Hills. वहाँ के जो लोग हैं मिजोरम के, उनके बहुत सारे एंशियंट हिस्टोरिकल
उनकी जो हिस्ट्री है वो एंशियंट टाइम से चलती आ रही है। गवर्नमेंट ने वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनको ऑटोनॉमी दी कि मिजो मेजोरिटी मतलब लुशाई हिल्स के आजू बाजू जो है मिजोरम वाले लोग, उनको प्रॉपर तरीके से उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ करने की अथॉरिटी मिल गई गवर्नमेंट के थ्रू। When the state's reorganization commission was appointed in the year 1954, the expectations of the people in this area grew. जब वहाँ पर एक कमीशन बनाया गया डेवलपमेंट के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था 1954 में, तो वहाँ के लोगों को ऐसा लगा कि अब मिजोरम की डेवलपमेंट चालू होगी। वहाँ के लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। मिजो लीडर्स स्टार्टेड डिमांडिंग एन ऑटोनॉमस मिजो प्रोविंस। अब वहाँ के लोग डिमांड करने लगे कि हमको एक अलग से मिजोरम चाहिए, एक अलग से प्रोविंस चाहिए जिसका नाम है मिजो या मिजोरम। ठीक है, उनको एक अलग से अपना स्टेट बनाना था या कंट्री बनानी थी, उनको इंडिया का पार्ट रहना नहीं था। In the year 1959, the territory of Mizoram experienced severe drought. 1959 में मिजोरम जो था उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉट आया। During this famine, मिजो लीडर्स लाल देंगा सर्व द कॉमन पीपल ऑफ गाँव। लाल देंगा वहाँ के एक कॉमन लीडर है, उन्होंने लोगों के बहुत मदद की, वो ग्राउंड लेवल पे आकर लोगों की मदद करने लगे। 1961 में लाल देंगा ने एक अपनी खुद की पार्टी चालू की, मिजो नेशनल फ्रंट जिसका नाम था। ठीक है, लाल देंगा एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मिजो नेशनल फ्रंट MNF। He asked for Greater Mizoram, an independent nation carved out of the Tripura, Manipur and Mizo majority areas from the Lushai Hills. Then after the party was formed, he said कि हमको एक अलग से मिजोरम नाम की एक कंट्री चाहिए जिसमें मेजॉरिटी पार्ट्स त्रिपुरा के भी होने चाहिए, मणिपुर के भी होने चाहिए और बहुत सारा पार्ट लुशाई हिल्स का भी होना चाहिए। ठीक है, In March 1996, Mizo National Front announced the emergence of independent Mizoram। 1966 में उन लोगों ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट मिजोरम है। वो पार्टी ने, किसने? MNF ने, मिजोरम नेशनल फ्रंट ने अनाउंस कर दिया दैट वी आर इंडिपेंडेंट मिजोरम। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैंडल्ड दिस सिचुएशन फर्मली एंड सप्रेस्ड द रिबेलियन। उनको शांत कराया कि नहीं बाबा आप ऐसा मत करो, मिजोरम जो है वो इंडिया का ही पार्ट है एंड यू विल गेट टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल। ऐसे सब उनको सब थोड़ा सा अच्छा प्यार से समझा। When the situation calmed down in 1972, from 1966 to 1972, 6 साल चला ये जो रिबेलियन एक्ट था, the Mizo majority area was given to the status of union territory। फिर उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। स्टेट तो बनाया नहीं, पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया इन द ईयर 1972। 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने एग्रीमेंट साइन किया और मिजो नेशनल फ्रंट एंड मिजोरम वाज गिवन द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेश्ड स्टेट। उन्होंने, राजीव गांधी ने मिजो नेशनल फ्रंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट के थ्रू मिजोरम को एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दिया गया। मिजोरम वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1985। लाल देंगा बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ऑब्वियसली अगर राजीव गांधी के साथ अगर साइन किया है एग्रीमेंट और अगर चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं वो, तो किस पार्टी को बिलोंग करते होंगे? कांग्रेस को। ऑब्वियसली राजीव गांधी इज अ लीडर, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस। ओके, मिजोरम का इतना ही पार्ट था। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स नागालैंड। द नागा ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नोन एज द मार्शल ट्राइब। As a martial tribe, the Naga tribe had settled in eastern Himalayas, the Naga Hills, the border areas of Assam and Myanmar। उन्होंने म्यांमार, असम और some parts of Himalayas, इसके ऊपर लोग रिसाइड करते थे, रहते थे। 1946 में क्या हुआ? Some educated Naga youth established an organization called Naga National Council (NNC)। कुछ पढ़े लिखे नागा यूथ जो थे उन्होंने काउंसिल चालू की जिसका नाम था नागा नेशनल काउंसिल। लेटर दे मेड अ डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड। फिर उन लोगों ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड किया कि हमको एक इंडिपेंडेंट नागालैंड नाम का स्टेट चाहिए। दे वर लेड बाय अंगामी जापू फिजो। ठीक है, उनके लीडर का नाम क्या था? अंगामी जापू फिजो। In 1954, the Naga National Council announced the establishment of an independent फेडरेशन ऑफ नागालैंड। वो लोग ने फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी मांगना चालू कर दिए इन द ईयर 1954। 1955 में क्या हुआ? Skirmishes happened between local Nagas and the soldiers of the Assam
राइफल्स, skirmishes मतलब थोड़ा सा यू कैन से दैट नेगेटिविटी क्रिएट हो गई, झगड़ा वगड़ा हो गया, झगड़ा नहीं बोल सकते उसको, यू कैन से दैट अटैक कर दिया उन लोग ने एक दूसरे को, ठीक है। आसाम राइफल्स और लोकल नागा पीपल, इन दोनों के बीच में मिलिट्री एक्शन वॉज टेकन टू सप्रेस दिस skirmishes, मिलिट्री एक्शन ली गई और वहाँ की सिचुएशन को शांत कराया गया। Several rounds of discussion was taken from central government and the Naga National Council, सेंट्रल गवर्नमेंट और नागा नेशनल काउंसिल, इन दोनों के बीच में बहुत सारी मीटिंग हुई और फिर नागा मेजॉरिटी टेरिटरी द स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव द नागा मेजॉरिटी टेरिटरी द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी। फिर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑब्वियसली, पहले वो लोग डायरेक्टली स्टेट नहीं बनाते हैं, दे टर्न देयर डिमांड्स इनटू यूनियन टेरिटरी। उन लोग ने फिर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया और धीरे धीरे फिर उसके बाद 1 दिसंबर 1963 को नागा मेजॉरिटी टेरिटरी ये फुल फ्लेज स्टेट बन गई, ठीक है, समझ में आया। नागालैंड जो था वो 1963 में फुल फ्लेज स्टेट बन गया ऑन 1 दिसंबर। कमिंग टू आसाम, असम नागालैंड में भी लिखा ही नहीं, वाह क्या बात। चश्मा लगाना पड़ेगा शायद, 1 2 3 4 स्टेट से नागालैंड कैसे मिस हो गया क्या। ओके, कमिंग टू आसाम। In the year 1983, there was an intense agitation staged by all Assam Student Union and Assam Ganasangram Parishad over the question of dominance in Assam of Bengali migrants. 1983 में students of Assam and local parties of Assam, they started an agitation, एक बोलते ना मोर्चा निकाला, एजिटेशन, खिलाफ जाने लगे लोग गवर्नमेंट के कि हमारे इधर बंगाली माइग्रेंट्स का जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने क्या किया, सेंट्रल होम मिनिस्टर 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, सेंट्रल होम मिनिस्टर शंकर राव चौहान एंड आसामीज लीडर प्रफुल्ल कुमार मोहंतो साइंड एन अकॉर्ड, एक एग्रीमेंट साइन किया इन दोनों ने मिलकर, डिसीजन लिया कुछ तो। अब वो क्या डिसीजन था देखो। It was decided to send the Bangladeshi citizens who had infiltrated in Assam back to their original places. जो बंगाली पीपल या बांग्लादेशी पीपल जो जहाँ से आए थे आसाम में, जो आसाम में यू कैन से दैट डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहे थे, उनको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि उनको हम लोग वापस भेज देंगे उनके ओरिजिनल प्लेसेस पर। In 1986, elections were held for Assam Legislative Assembly and Prafulla Kumar Mohanto of the Assam गण परिषद became the new chief minister, ठीक है। 1986 में फिर से इलेक्शन हुआ और प्रफुल्ल कुमार मोहंतो जो थे वो असम गण परिषद की तरफ से गण परिषद पार्टी को बिलोंग करते थे और वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गया। ऑब्वियसली आई गेस वो कांग्रेस को बिलोंग करते थे। ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट बिकेम पॉसिबल टू एस्टैब्लिश पीस इन आसाम। फिर ये इलेक्शन हुआ और चीफ मिनिस्टर मोहंतो और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी और जो जितने भी लोग इससे अफिलिएटेड थे उन सब ने मिलकर आसाम में पीस वापस से डेवलप करने की लाने की कोशिश की और वो उसमें सक्सेसफुल हो गए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेट ऑफ दिस चैप्टर, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड हो चुका है, आसाम हो चुका है, मिजोरम हो चुका है, अरुणाचल प्रदेश बचा है। अरुणाचल प्रदेश इन द ईयर 1954 नेफा दैट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो फॉर्म हुई थी 1972 में, इट बिकेम टू बी कॉल्ड एज अरुणाचल प्रदेश रीजन ऑफ द राइजिंग सन। जो एजेंसी जो रीजन नेफा के अंडर में आता था, अब वो रीजन का नाम है अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी 1987 को इट गॉट द स्टेटस ऑफ अ फुल फ्लेज स्टेट। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश फॉर्म हुआ था। ये पीरियड के टाइम, ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1960 to 2000, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैड प्रोग्रेस्ड टुवर्ड्स अ मोर मैच्योर डेमोक्रेसी। This area is on the path of progress through industrialization, spread of education, etc. Okay, 1960 से लेके 2000 तक ये जो स्टेट है उसमें बहुत सारे
चेंजेस आए, बहुत सारे उन लोग ने प्रॉब्लम्स सहे हैं, बट उन प्रॉब्लम्स को लोग ओवरकम करके आज दे हैव डेवलप्ड टूवर्ड्स यू नो अ फुल फ्लेज स्टेट, और वो स्टेट्स में आज डेवलपमेंट बहुत रैपिडली हो रही है। वो जो पार्ट है इंडिया का, वो एक डेमोक्रेटिक पार्ट है, एंड दे आर फेसिंग पॉजिटिविटी थ्रू आउट। ठीक है, सो आई एम वाइंडिंग अप माय लेक्चर ओवर हियर। आई होप पीपल हैव एंजॉयड द लेक्चर। सब समझ में आया तुमको? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तुम लोग डाउट पूछ सकते हो। यू कैन व्हाट्सएप मी। You have to do certain things after this, after watching this videos. First thing is you have to like the lecture. If you अगर पसंद नहीं भी आया तो डिसलाइक करो, चलेगा, बट करना है कुछ तो, लाइक या तो डिसलाइक, बिना लाइक या डिसलाइक किए जाना नहीं है। ठीक है, सेकेंड थिंग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द लेक्चर, टू द वीडियोज, टू द चैनल ऑफ आवर क्लासेस, प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाओ ताकि तुम लोग को फटाक से वो लेक्चर के नोटिफिकेशंस आ जाए। थर्ड थिंग, यू हैव टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स को भेजो और उनको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने बोलो और उनको फॉरवर्ड करने बोलो। ये चेन बनाने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे क्लासेस से जुड़े और हमारे क्लासेस का नाम हो। तुम लोग के हाथ में है वो सब चीज़ें। ठीक है, एंड लास्टली आई वुड से कि तुम लोग इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे भी रखो, अगर व्हाट्सएप है तुम्हारे पास, तो यू आर यूजिंग व्हाट्सएप, सो दैट यू कैन ईजिली शेयर दिस पर्टिकुलर थिंग्स, दीज वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एज वेल। ठीक है, थोड़ा सा कर दो, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। वाइंडिंग अप लाइक सो दिस वाज व्हाट्सएप फॉर यू। वी स्टडीड अबाउट इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस, थर्ड चैप्टर हिस्ट्री। दिस वाज लेक्चर नंबर 2 आई गेस। हाँ, लेक्चर नंबर 2, 9th स्टैंडर्ड। थैंक यू सो मच।